Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav will visit the ancestral residence of Mukhtar Ansari, who died on the 28th of March following a cardiac arrest in Banda. The decision comes after the AIMIM chief Owaisi visited Ghazipur to meet Mukhtar's family and offered his condolences. Later, Owaisi also questioned the silence of Akhilesh Yadav on the death of Mukhtar Ansari and also questioned him for not meeting his family. After much backlash and what is being seen as appeasement, Akhilesh Yadav first sent his brother Dharmendra Yadav to visit the family, but now has decided to go himself. As Eid is just a few days to go, banners in favour of Mukhtar Ansari were also in fact put up at the Samajwadi Party office by the former office bearers, urging people not to celebrate Eid and instead offer prayers at Eidgah for Mukhtar. Later, the posters set up at the party office were removed by the police. However, the Samajwadi Party has distanced itself from the posters at the party and also added that Akhilesh Yadav will be going to meet the party candidate Afzal Ansari as his brother Mukhtar passed away. कौन सा पोस्टर कहां समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा था, इसकी कोई जानकारी समाजवादी पार्टी को नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी कल समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के घर जा रहे हैं। उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन हो गया था, उनके परिवार से मिलेंगे। पोस्टर की कोई भी जानकारी समाजवादी पार्टी को नहीं, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी समाजवादी पार्टी को नहीं करनी है। So, politics around it continuing. Many had questioned Akhilesh Yadav, including Owaisi, who questioned the stand of Akhilesh Yadav, after which now Akhilesh Yadav has decided to visit the family members of Mukhtar Ansari. In fact, the SP also putting up two different fronts. First, there were posters and banners that were put up at the office, after which the Samajwadi Party also denied it and claimed that these posters were not put up by the Samajwadi Party but by others. So, tomorrow, Akhilesh Yadav is going to be visiting Mukhtar Ansari's ancestral residence. My colleague Vinod is joining us on the broadcast with the details of the political significance of it. Vinod, there seemed to be a flip-flop from Akhilesh Yadav, Samajwadi Party as well. After some criticism, Akhilesh Yadav now finally going on the 7th of April. Tell us the political significance of it and why it puts the Samajwadi Party in a spot. लुक, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कास्ट इक्वेशन है, खासतौर पर कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम सेंटीमेंट है उसको एंटी बीजेपी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करने के लिए समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है। हालांकि शुरुआत में अखिलेश यादव नहीं गए, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि अखिलेश यादव ट्वीट तो करते हैं लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम तक मेंशन नहीं करते उस ट्वीट में, और शायद यही इंपैक्ट है कि अखिलेश यादव को वहां जाना पड़ा। बहुत बड़ा स्टेक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पर है। उनका मानना है कि जो मुस्लिम वोटर्स है जिन्होंने 2022 में एक मुश्त वोट किया था समाजवादी पार्टी को, अराउंड 92% वोटिंग जो था वो मुस्लिम का वो समाजवादी पार्टी के लिए ही था, और ये एक बड़ा स्टेक है। इसको समाजवादी पार्टी को बना के रखना है। मुख्तार अंसारी ना सिर्फ गाजीपुर बल्कि आसपास के जिलों में प्रभाव रखते हैं, और एक जो सेंटिमेंट है इस समाज का, जो मुस्लिम समाज है उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है मुख्तार अंसारी से। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर अखिलेश यादव वहां जाते हैं तो ये सेंटिमेंट जो है वो उनके पक्ष में आएगा, और जो एंटी बीजेपी के लिए जो एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुस्लिम समाज के बीच, उस सेंटिमेंट को और ये बढ़ा पाएंगे। और शायद यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने ये प्लान किया है कि वो कल जो है मुख्तार अंसारी के घर पे जाएंगे, उनके बेटे से, उनके भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात करेंगे। आपको पता होगा कि अफजाल अंसारी को बाकायदा कैंडिडेट जो है गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है अखिलेश यादव का वहां जाना, संवेदना प्रकट करना, इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव यही है कि ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो मुस्लिम्स उनके साथ खड़े हैं वो उनको उनको एक साथ एकजुट करके रख सके, और इसके लिए जरूरी है कि वो एक मैसेज समाज को दे कि उनके साथ है। अखिलेश यादव अगर वहां जाते हैं तो एक मैसेज समाज में जाएगा, उस समाज में, कि अखिलेश यादव उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव उस घटना के 2 दिन बाद वहां पहुंचे हुए थे, संवेदना जताई थी, लेकिन ये भी था कि अखिलेश यादव क्या केवल वोट लेंगे मुसलमानों का, वो नहीं जाएंगे उनके घर पे, और शायद यही वजह है कि अब अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ा है। वो कल जा रहे हैं, वहां जाकर मुलाकात करेंगे। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स भी है, जिसमें कास्ट फैक्टर,
बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश में, और उसी को एक तरह से अपने पक्ष में करने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव को वहां जाना पड़ रहा है। Okay, all right. So the question being, why this sudden visit by Akhilesh Yadav? Is it because of the criticism that he faced? Is it vote bank politics? Why? Amid these questions, in fact, a Muslim cleric has also accused the India bloc of simply using the Muslim community as a vote bank. Stay on with us, Vinod. Listen into this reaction. इस मीटिंग का अहम मकसद ये था कि इस बार मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट ना करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार नहीं, हर बार इंडिया गठबंधन में मुसलमानों को अनदेखी की गई। अभी 4-6 दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने खत लिखा, राहुल गांधी जी को कोई जवाब नहीं आया। बड़े आलिम से मुस्लिम बहुलिय क्षेत्र में टिकट लेने देने के लिए मशवरा नहीं किया। तो ये लोग उलमाए किराम की इतनी तौहीन करेंगे तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।